Assalamualaikum grade 8. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. I hope that all of you are healthy, wealthy, safe, enjoying your life, enjoying your school, hanging out, playing outdoor games, right? Not on the mobiles or your computers, but having physical activities as well. But in all this hustle and bustle, do not forget your academics. It's very essential for you to pay attention towards your academics. ठीक है? चलो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं. आ जाओ मेरे साथ. जी, what is the board telling you? The board is telling you to take your grammar tree out in specific and unit number 20 in further specific, and after that you have to take page number 121, and I am going to teach you page numbers 121 to 125 of unit 20, which is sentence construction and synthesis. हमने बहुत कुछ sentences के बारे में पढ़ा है. हमने different types of sentences पढ़े हैं, different forms of sentences पढ़े हैं, हमने phrases पढ़े हैं, हमने clauses पढ़े हैं. तो आज फिर sentence क्यों? आज फिर sentence यूं कि जो हम common errors करते हैं अपनी sentence construction में, उनको हम point out करें, highlight करें और correct करें. Sentences क्यों जरूरी हैं? इसलिए जरूरी है बच्चे कि the entire world is scripted. जो भी बोल रहा है ना बेटा, कोई भी impromptu नहीं बोल रहा. हर शख्स प्रिपेयर करके आया होता है कि मैंने ये कहना है. ठीक है? वो आपकी बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी हो, वो आपका बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, वो आपका बड़े से बड़ा साइंटिस्ट हो, प्लेयर हो, कोई भी हो, वो सब लिख के अपनी स्पीच प्रिपेयर करके आया होता है आपके सामने, पब्लिक के सामने बोलने के लिए. तो आपके पास एक ह्यूज सा वोकैबुलरी बैंक होना जरूरी है. आपके पास एक कॉमन सेंस होनी जरूरी है कि थ्रू विच you are constructing sentences in such a manner in order to impress others. ठीक है? गुफ्तगू, eloquence, fluency, लबो लहजा, बोलने का अंदाज कुछ ऐसा होना चाहिए कि ना चाहते हुए भी अगला आपकी बात पे कन्विंस हो जाए, आपका कहना माने, आपकी बात सुने. ठीक है? समझ आ गई है? चलो अब सबसे पहले मैं आपको दोबारा रिकैपिचुलेट कर दूं what actually is a sentence. Before we move on to the fragments or to the errors that we do while constructing sentences, let's quickly recapitulate the concept of sentence. Sentence is a combination of words or groups. It's a combination of phrases and clauses. ठीक है? A sentence is such a group of words that carries a subject and a verb agreement, that has a subject and a predicate, that has a subject and an object. A sentence can have a dependent clause or an independent clause or a combination of both. The sentences can be of three forms: simple, complex and compound. In simple sentence you will find a simple subject and predicate, subject and verb agreement, whereas in compound sentence you will find a independent clause joined with an other independent clause along with a coordinating conjunction. And in a complex sentence you will find an independent clause joined with a dependent clause along with the help of a subordinating conjunctions. Apart from these, you can have multiple definitions and explanations of sentences, their types and their forms. But here we have recapitulated, basically we have understood or revised what a sentence is. ठीक है? अब जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम इस सेंटेंस को क्यों बेहतर करेंगे,
हम इस सेंटेंस को बेहतर करेंगे एक क्लियर और इफेक्टिव राइटिंग के लिए। अभी मैंने आपको समझाया है कि हमें अपना लबो लहजा, जबान, अपने अल्फाज कुछ इस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए कि अगला भी कन्विंस हो जाए कि यस यू आर राइट। ठीक है, उसके अलावा हमको अपने अल्फाज में, ठीक है, अपनी क्रिएटिव राइटिंग में, अपने बोलने में, whether we are referring to our daily language, daily whatever we are speaking, we should add up a combination of different complex and compound sentences in order to make us more eloquent, in order to make us more impressive. अच्छा लगता है ना कि सब हमारी बात माने, हमारी बात सुने, है ना, सब ये कहें कि हाँ ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, इसने कितने अच्छे तरीके से अपने थॉट को और आइडियाज को बयान किया है, व्हाई नॉट फॉलो व्हाटएवर ही इज सेइंग, राइट। तो लेट्स मूव ऑन और लेट्स गो वन स्टेप फर्दर टुवर्ड्स व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। जी, ऊपर लिखा हुआ है सेंटेंस फ्रेगमेंट। अब मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ आपको सेंटेंस फ्रेगमेंट को। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स या फ्रेजेस, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनके अंदर कोई एक कंप्लीट आइडिया नहीं होता। विदाउट अ कंप्लीट आइडिया दे डू नॉट मेक अ सेंटेंस ऑफ इट्स ओन। अ सेंटेंस फ्रैगमेंट डज नॉट मेक अ सेंटेंस ऑफ इट ओन। दे के साथ मैंने डू बोला है और अ सेंटेंस फ्रैगमेंट के साथ मैंने डस बोला है। सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट का बहुत ध्यान रखा करो। That is incomplete idea with a dependent clause needing extra information to be completed, यानी phrases, ठीक है। sentence fragment या phrases वो होते हैं जो एक dependent clause होता है और जो कुछ और words require कर रहा होता है, definitely आपकी conjunctions के वो उस idea को और clearly explain कर दे, ठीक है। अब इन sentence fragments को जब हम अपने sentences में add up करते हैं तो हम मल्टीपल मिस्टेक्स करते हैं एंड दोज मल्टीपल मिस्टेक्स रिजल्ट इन लूजिंग योर मार्क्स। wherever and whenever we speak about sentence structure, we speak about sentence synthesis, we speak about the errors that you generally made while constructing your sentences, ठीक है। So in order to not lose those 30% weightage of your creative writing marks, we need to seriously, meticulously learn what we have brought for you right now, right here, ठीक है। अब इसमें types of sentence fragments error in creative writing. Creative writing में आप कितनी types of sentence fragments की errors करते हैं मैं इधर लेके आई हूँ। इसके साथ मैंने आपको उनके examples भी लिख के दिए हैं जो मैं यहाँ और अभी आपको clear करके समझा के correct करूँगी, ठीक है। तो अब केयरलेस फ्रेगमेंट एरर कब होती है? जब आप बहुत केयरलेस हो या इतनी जल्दी में हो लिखने के कि आप उसको कंप्लीट ना लिख सकें। कभी भी किसी काम को करने की जल्दी नहीं मचानी चाहिए। जल्दी का काम शैतान का काम। अपना टाइम लो, अपना फुल टाइम लो, अपना पूरा वक्त लो और उसके बाद उस काम को करो, ठीक है। जब आप केयरलेस हो या बहुत जल्दी में हो तो आप यूजुअली दिस केयरलेस फ्रेगमेंट एरर कमिट करते हो, ठीक है। आई नीड टू बाय अ न्यू कार एनी मॉडल, ठीक है। बोलने में तो सही लगता है ना, हेलो आई एम हेयर एट योर कार शोरूम एंड आई नीड टू बाय अ न्यू कार एनी मॉडल। बोलने में भी ये गलती मत करो, जैसा बोलते हो वैसे ही कॉपी में लिख देते हो और फिर क्या होता है कि आपको सेंटेंस सिंथेसिस के मार्क्स लूज करने पड़ जाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम करेक्ट करेंगे तो हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे? हम इसको ऐसे करेक्ट करेंगे, need to buy a new car of any model, ठीक है, ठीक है। हमने conjunction लगा दिया of और rather preposition लगा दिया of और उसको करेक्ट कर दिया। समझ आया है ना? नेक्स्ट जो एरर हम करते हैं वो क्या है? नेक्स्ट एरर है वर्बल फ्रेज फ्रेगमेंट एरर। जो वर्बल फ्रेज हम उसमें लगा रहे होते हैं उसकी फ्रेगमेंट एरर है। वो क्या है? शी वेंट टू अमेरिका टू कंटिन्यू हर हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पर
फुल स्टॉप लगा के ये कैपिटल नहीं आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है। बहुत कॉमन एरर है, आपको पता ही नहीं होता कि किस वक्त सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फुल स्टॉप लगाना है, किस वक्त आपने कॉमा डाल के एक्स्ट्रा डिटेल देनी है, ठीक है। Why did she want to go to America? ये she went to America, क्यों गई, क्या वजह थी उसके जाने की? Why did she want to go? Because she wanted to continue her higher education, ठीक है। यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, क्यों जाना चाहती थी, इस वजह से, ठीक है। Adverbial phrase, right? अब next, he thought he could solve that problem by taking help of his friends. He thought he could solve that problem, comma, small letters, by taking help of his friends. Full stop इधर नहीं आना था, ये एक complete concept, एक complete idea है, ये एक complete sentence में आना था। अगर आपने टीचर के कहने पर हर जगह फुल स्टॉप डाल के सेंटेंसेस शुरू कर दिए हैं रिगार्डलेस ऑफ योर क्लियर कॉन्सेप्ट, तो बेटा यू आर इन ए फिक्स, ये सिंथेसिस के मार्क्स गए आपके, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एरर, लेट्स गो टू द थर्ड एरर। थर्ड एरर कौन सी है? थर्ड एरर वो है जिसमें आप प्रेपोजिशनल फ्रेज की गलती करते हैं, जैसे कि ये आपको लिखा हुआ है शी ले देयर स्टिल एंड अनमूविंग एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस, ठीक है। इसमें आपने जो प्रपोजिशन डाला है एट द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस, यानी वो कहाँ ले कर रही थी, वो थी बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस में। आपने सेंटेंस इधर से शुरू करना है, कैसे करना है? शी ले एट द बॉटम of the staircase, comma किस तरह ले कर रही थी? Still and unmoving, still and unmoving, ठीक है। ये जो आपकी preposition थी at the bottom of the staircase, ये prepositional phrase था, कहाँ थी वो लेकर रही? bottom of the staircase, और उसको जब आप यूज करेंगे तो आप उसको पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे कि किस तरीके से she was laying still and unmoving, ठीक है। poor lady, she is laying still and unmoving, and we are heartlessly describing the sentence, not paying any attention towards her problem. All right, now is the subordinate clause फ्रेगमेंट एरर। यहाँ पर सब ऑर्डिनेट क्लॉज लगना चाहिए जो हमने नहीं लगाया हुआ, कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। ही फेल्ड इन हिज स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन डिस्पाइट हिज डेडिकेटेड एफर्ट, डिस्पाइट हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिस्पाइट इज अ सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, वो कभी भी सेंटेंस के साथ फुल स्टॉप लग के कैपिटल लेटर में अलहदा से नहीं आ सकता। हम इसको लिखेंगे ऐसे कि डिस्पाइट हिज डेडिकेटेड एफर्ट्स, कॉमा he not she, sorry, he failed in his school leaving examination. School leaving examination कौन से होते हैं? कभी सोचा है? कभी ऐसा सोचा है कि आपने स्कूल लीव करना है, नए स्कूल में एडमिशन लेना है, तो आप एग्जाम दे के जाएंगे? स्कूल लिविंग एग्जामिनेशंस बेटा वो एग्जामिनेशन होते हैं कि जिनको दे के आप स्कूल से फारिग हो जाते हैं और कॉलेज में एंटर हो जाते हैं, और वो है आपके मैट्रिक के एग्जाम, ठीक है। तो वो बेचारा तो बहुत कोशिश करके पास नहीं हो सका, कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट फ्रेज फ्रेगमेंट एरर। अब ये कौन सी एरर है? ये एरर वो है जिसमें हमने ये जो फ्रेज है ना, हर लेग्स ट्रेम्बलिंग, इसको हमने बिल्कुल गलत जगह इस्तेमाल किया हुआ है।
ठीक है, कैसे अभी बताती हूँ. मैरी वेटेड आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस, हर लेग्स ट्रेम्बलिंग. ठीक है, with trembling legs, comma, Mary waited outside the principal's office. I hope you are realizing that whatever you say verbally can cause great marks in your written work. ठीक है, तो not only correct your verbal sentence construction but also focus on your written sentence construction in order to gain 30 on 30. कंटेंट के मार्क्स तो मिल जाएंगे, आइडियाज तो बहुत है हमारे पास, सेंटेंस सिंथेसिस के मार्क्स लेने इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है रिलेटिंग टू दिस errors that you do make in your creative writing. Let's move on to the last topic, concept of the day. जी, अब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको फ्रेगमेंट्स लगाने की इजाजत है. कौन सी चीजें वो? आपने डिसाइड किया बड़े होके क्या बनना है. ठीक है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यस, कंप्यूटर इंजीनियर्स, ओ हो, पायलट्स, वाह जी वाह. आई हैव सो मेनी प्रोफेशंस, बट हैव यू एवर थॉट of doing your MBAs, going for the advertisement agencies, ठीक है, doing your mass communication. जी, उस फील्ड में, उस एरिया में आपको फ्रेगमेंट्स यूज करने की परमिशन होती है. ठीक है, जैसे कि मेरा बोर्ड आपको बता रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने जो कूल और कैची स्लोगन्स लिखने हैं, उन स्लोगन्स के लिए आप फ्रेगमेंट्स यूज करते हैं. ठीक है, जैसे नाम ही काफी है, जैसे जालिमा पिला दे. ठीक है, तो ये सारे जो आपके स्लोगन्स हैं, मुझे ये याद आए, मैं किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रही. ठीक है, मुझे सिर्फ यही इस वक्त याद आया है. तो ये जो स्लोगन्स हैं, यहाँ पर आपको फ्रेगमेंट्स यूज करने की परमिशन है. ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए, आप स्लोगन्स बनाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट पर्पसेस के लिए फ्रेगमेंट्स यूज कर सकते हैं. उसके अलावा आप स्नैपी स्लोगन्स अट्रैक्ट करने के लिए भी बना सकते हैं. ठीक है, जैसे आपने एक अपने घर के बाहर लेमनेड का स्टॉल लगाया है, इट्स समर्स एंड यू वांट टू सेल लेमनेड एंड यू वांट टू अर्न योर पॉकेट मनी. आपने लेमनेड का स्टॉल लगाया है, उसके ऊपर आप कैची स्लोगन लगा सकते हैं, क्यूट एंड कूल. ठीक है, कूल एंड आईसी. तो यू कैन हैव दोज एज योर स्लोगन्स. ठीक है, अब आप दो जगह और इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेगमेंट्स को. एक तो ये कि आप एक्सप्रेशंस को और इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहें, और दूसरे ये कि आप वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांजिशन लें. ठीक है, मूव ऑन करें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. और इसकी एग्जांपल्स हैं व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज, हाउ सैड, इन कंक्लूजन, वन फाइनल पार्ट. यहाँ पर आप फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं. जैसे आपने क्रिएटिव राइटिंग लिखी, ठीक है, इस क्रिएटिव राइटिंग में यू हैव asked your friend to come over but he refused on the special day, that is your birthday. He came over with a huge gift and you shouted, what a surprise. As soon as I saw my best friend, I shouted, what a surprise, full stop. He replied with a huge smile. ठीक है, तो ये फ्रेज इस तरह से आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आंसरिंग अ क्वेश्चन इन ऑरल कम्युनिकेशन. ऑरल कम्युनिकेशन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. इसका मतलब है कि आपने बोलते हुए ये इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटन नहीं हो. रिटन आपका पूरा आंसर फॉर्मेटेड हो. ठीक है, तो ओरल कम्युनिकेशन में भी मत बोलो, इवन इफ यू आर अलाउड टू डू सो. जैसे हुज बुक इज दिस, माय ब्रदर्स, वेयर आर यू गोइंग होम. ठीक है, करते हो अक्सर ऐसे, लेकिन कोशिश करो कि अवॉइड करें. ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज ए है, आफ्टर डूइंग ऑल दिस फ्रेगमेंट्स एंड देयर एरर्स,
और ये एक्सरसाइज ए आपको कह रही है कि आप फाइंड आउट करें कि कौन से सेंटेंसेस हैं, कौन से फ्रेगमेंट्स हैं इस स्पेसिफिक पैसेज में। आपके साथ मिलके आइडेंटिफाई करती हूँ, अपनी इनपुट दो, साथ साथ मुझे बोल के सुनाओ, ठीक है। बाबर बॉट सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम द स्टोर। ये क्या है, सेंटेंस है कि फ्रेगमेंट है? सेंटेंस है कंप्लीट, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। Pens and pencils is a fragment. And also erasers is also a fragment. अच्छा, मैं F और S लिख देती हूँ, ठीक है, जगह कम है। He did not have enough money to pay for them is a sentence. He felt really embarrassed is a sentence, ठीक है। Could not speak clearly is a fragment. Stammered and stuttered in shame, ठीक है, it's a fragment. कौन stammer कर रहा था, stutter कर रहा था? He was reassured by the shopkeeper is a sentence. Who told him to pay him later is a fragment. किसने कहा, ठीक है। I really appreciate this. Babar told him is a sentence. देखा कितना आसान था, आपने सबने मुझे बता दिया, आपको सबको आ रहा था, आपको सबको कॉन्सेप्ट क्लियर था, ठीक है। हमको पता है कौन सा सेंटेंस है, हमको पता है कौन सा फ्रेगमेंट है, हमने कैसे लगाना है। क्विक रिकैपिचुलेशन ऑफ टुडेज लेसन। व्हाट डिड वी डू टुडे? वी डिड द सिंथेसिस ऑफ अ सेंटेंस। वी फाउंड आउट रिगार्डिंग the fragment error that we do commonly in our sentence construction, and we learned how to avoid them. We learned how important it is to construct a diverse combination of sentences in order to give a superb creative writing, in order to impress others and in order to gain the maximum number of marks. अपना बहुत ध्यान रखना, ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, पढ़ते रहना, हेल्दी रहना, सेफ रहना और मम्मा पापा के ओबीडिएंट रहना, ठीक है। इजाज़त दो, अल्लाह हाफ़िज़।